Hello, everyone. Very good morning to you all. I hope you all are doing well, happy, peaceful. So, today we are here and I am super excited because we are having our episode 97 of Instagram Live Guest Talk with Homeopathy Heals. I can't even imagine how far we have came in these 3 years. I'm so much delightful to know that people, students, fellows, they are getting benefit out of it. They are able to learn from various stalwarts. So today we'll be having two guests with us. Both are MD scholars. The idea of today's live is because we always see tip of an iceberg. We see people, homeopaths, successful, earning, maintaining a living standard, the feeling of accomplishment. I would like to and I would love to take you down the road where students still are struggling, they are hitting hard, and they are ready not to give up. So let's add our two guests of honor today. Good morning, ma'am. Great, a very good morning. So we have Morning, ma'am. our first guest. We can't see you, Dr. Ashutosh. Uh, okay. I'm back with the video. Ah, I'll send you again, no problem. So, just a minute. So, before our second guest join, I would like to welcome today's guest of honor. He is, a very upcoming star. He is Dr. Ankur Shukla. He is BHMS and he's MD scholar and he's pursuing his post graduation at Bexon Homeopathic Medical College. He is doing specialization in organ of medicine. So आज बहुत कुछ नया होने वाला है, नया सीखने वाले हैं, एक नया पर्सपेक्टिव देखने वाले हैं. ही इज वेरी एंथुजियास्टिक एंड ही हैज लर्न अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर LM Khan sir, and he's been sharing his experiences as young and aspirant homeopath. He has so many additional efforts of multimedia. He has also a venture into realm of literature. He has penned a comprehensive book of review for dictionary of practical materia medica by Dr. Clark, which was published by Homeopathy 360. He has also authored several articles that are eagerly awaiting publication in the esteemed peer review journal. A very warm welcome to you, Dr. Ankur. Thank you, ma'am. Where is our second guest? Dr. Ashutosh, you can, leave and join again. We cannot start with another guest. Dr. Ashutosh? I'll try to add him again.
Hello, ma'am. Am I Hello. visible, ma'am? Yes. Loud and clear. I would like to welcome the second guest of honor, Dr. Ashutosh Bharadwaj, and Thank you. he is from Uttar Pradesh and he did his graduation from Sagar Homeopathic Medical College, Madhya Pradesh, 2014, and he has always wanted to be a doctor. He is doing now MD in Department of Materia Medica from State Lal Bahadur Shastri Homeopathic Medical College. He has cleared AIPGT exam with the rank 7 and he has done extensive training under so many stalwarts. He has done research and so many certificate courses. He has got a lot of inspiration from parents, his siblings, and he's very active on social media, as you know, as you can see, and you can follow him on Dr. Ashutosh Bharadwaj. So, very warm welcome to you, Dr. Ashutosh. Thank you so much, ma'am. Okay, before we start, Abhishek boss is saying, ma'am, Khandala workshop is missing you. I'm also missing all of you so much. पर पापी पेट का सवाल है, क्लिनिक भी देखना पड़ता है बॉस. बहुत जल्दी आज तो मुलाकात होगी. We'll join definitely next time. So आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. मेरी तरह सारे ऑडियंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. So Yes. मेरा पहला क्वेश्चन डॉक्टर अंकुर के लिए है. डॉक्टर अंकुर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप ऑर्गनन में एमडी कर रहे हैं, मतलब जो कि एक नॉर्मल एमडी स्कॉलर के लिए या बीएचएमएस स्टूडेंट के लिए थोड़ा एब्जॉर्ब करना, थोड़ा डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट होता है. बिकॉज जब भी एमडी के हम सीट फिल करते हैं तो हम पहले प्रेफरेंस मटीरिया मेडिका को देते हैं. मैंने खुद ने भी मटीरिया मेडिका में किया है. मतलब अच्छी रैंक लाना है, मटीरिया मेडिका में करना है. मटीरिया नहीं मिलता है तो हम रिपोर्टरी करते हैं, अनलेस वी आर नॉट सो मच फॉन्ड ऑफ रिपोर्टरी. सो यू आर परसुइंग पीजी इन ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन, जैसे बच्चे यूजुअली, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, बच्चे यूजुअली बहुत मजबूरी में करते हैं कि कुछ नहीं मिला तो नाम के आगे एमडी हो जाएगा ऑर्गन. आपके हिसाब से, just because you are not pursuing it by chance, you are pursuing it by choice, in what ways you think that organon has served as a foundation of specialized knowledge and skills in homeopathic practice when it comes to postgraduate level? First of all, I would like to thank you for inviting me here. और हम जैसे बहुत यंग होम्योपैथ्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म से इंस्पायर होते हैं देख के और सीखते हैं. और मैम, जब ऑर्गनॉन की बात आती है तो पहले भी ऐसे बहुत सवाल मेरे से खुद मेरे कलीग्स ने, मेरे जान पहचान वालों ने करे कि ऑर्गनॉन में लेके क्या करोगे, कि ऑर्गनॉन में क्या होता है. तो मैम, इसका मैं आंसर देने से पहले एक कोट है डॉक्टर ज्ञान मजुमदार सर का, जो कि ऑर्गनॉन में फॉरवर्ड लिखा है डॉक्टर खान सर ने. उसमें लिखा हुआ है कि इफ मटीरिया मेडिका इज अ हॉर्स, then organon is its reins that will guide it to its ultimate destination. तो इस कोट को जब मैंने पढ़ा और उसको फिर पोस्ट, हम यूजी में क्या होता है कि हम लोग ऑर्गेनॉन पढ़ते हैं 4 साल पास करने के लिए, गाइड बुक्स लिया, एग्जाम पेपर भरा और वो हो गया. पर जब पोस्ट ग्रेजुएशन में हम ऑर्गेनॉन की बात करते हैं और होम्योपैथिक फिलोसफी की बात करते हैं, तो फिर अगर इसको बेसिक तरीके से देखा जाए तो सिमिलिमम या रेमेडी ढूंढना हमारा मेन एम है, इंडिविजुअलाइज करके. पर अगर हम सिमिलिमम ढूंढने का प्रोसेस पे जाते हैं तो पहला स्टेप आता है केस टेकिंग. तो केस टेकिंग आपको कहां सीखने को मिलती है? ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट में सीखने को मिलती है, 82 अफोरिज्म से 104 अफोरिज्म तक. फिर अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं केस प्रोसेसिंग के, कि केस प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है कि अब ये जो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज मिला, ये जो एक पूरी पिक्चर मिली, इसमें से टोटलिटी कैसे बनाई जाए. तो अब ये जो प्रोसेस होता है, उसके लिए केस प्रोसेसिंग करने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट से मिलेगी, होम्योपैथिक फिलोसफी से मिलेगी. उसके बाद आता है माइजमेटिक डायग्नोसिस. माइजमेटिक डायग्नोसिस की इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? वो आपको इसी सब्जेक्ट से मिलेगी जो आप कर रहे हैं, पढ़ते हैं 4 साल 5 साल अपने यूजी में. उसके बाद मैम आता है कि अगर मैंने ये तीनों चीजें कर ली और सिमिलिमम सेलेक्ट करके दे भी दिया, तो सिमिलिमम देने में जो पोटेंसी यूज होनी है, जो रेपिटेशंस यूज होने हैं, उसकी नॉलेज, उसके रूल्स, उसके प्रिंसिपल्स कहां पर मिलते हैं? तो वो भी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन होम्योपैथिक फिलोसफी की किताबों में ही आपको मिलेंगे. अलग अलग स्टॉलवर्ड्स ने इसको एम्फोसाइज भी करा हुआ है कि ऑर्गेनॉन की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, कि अगर आपको पोटेंसी, रेपिटेशन समझना है तो आपको इन टेक्स्ट बुक्स को अच्छे से समझना पड़ेगा. और फिर मैम, अगर हमने पहली टाइम फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन कर भी लिया, तो फिर से पेशेंट जब सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में आता है
तो फिर हाउ विल वी गिव द सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, क्या बेसिस होगा उसका, कौन से सर्कमस्टेंस में कैसा प्रिस्क्रिप्शन करना होगा, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमको ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक फिलॉसफी से मिलती है। तो अगर हम एक वो स्टेप को, जो फिर मैं उस कोड को ये डिफाइन करता है कि अगर मटीरियल मेडिका हमारे पास इंफॉर्मेशन, रेपर्टरी की इंफॉर्मेशन है, सॉलिड है, लेकिन वहां तक पहुंचना और उसके आगे बढ़ना दोनों हमें ऑर्गेनॉन सिखाता है। तो this is why I choose organon of medicine in post graduation. मैम आई थिंक आपका माइक म्यूट आ रहा है। एक्चुअली दिस इज वेरी मीनिंगफुल, और हमने भी इस तरह से सोचना चाहिए कि कैंट के चाहे 12 ऑब्जर्वेशंस रहें, चाहे मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहे, चाहे मायाजम और एंटी मायाजमेटिक रहे, है ना, एफोरिज्म 79, 80, 81 रहे, है ना। सो दैट वाज एब्सोल्युटली एप्ट। मेरा सेकंड क्वेश्चन डॉक्टर आशुतोष के साथ है। ये क्वेश्चन मैं डॉक्टर आशुतोष से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल, अगला सवाल डॉक्टर आशुतोष जवाब देंगे तो शायद मेरे से सवाल उठने बंद हो जाएंगे। तो सवाल ये है, डॉक्टर आशुतोष ये बताइए कि आपको लगता है कि वाकई एमडी करना जरूरी है? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा यकीन मानिए मेरे दोस्तों के पास 4-4 क्लिनिक हैं, और वो शायद मेरे बराबर ही अर्न कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने 3 साल पढ़ाई की, उन्होंने 3 साल पहले शुरू किया, बीएचएमएस के तुरंत बाद शुरू कर दिया था। उन्होंने फीस भी अपनी बहुत नॉमिनल रखी थी, वो आज भी 200-250 रुपीज पे इन अ सिटी ऑफ अ यूपी, है ना, कर रहे हैं 4 क्लिनिक, अर्निंग सो वेल। सो कभी कभी you ask question, your fellows ask question, your juniors ask question फाइनल ईयर के, कि क्या वाकई होम्योपैथिक स्पेशलाइजेशन एमडी पढ़ना या परस्यू करना जरूरी है? ओवर टू यू डॉक्टर आशुतोष। Thank you so much, ma'am. First of all, I'm very enlightened and graceful that ma'am you have invited me and invited us. So ये एक प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो मैम, ओवर टू द क्वेश्चन इज कि स्पेशलाइजेशन या एमडी इज नॉट अ बिग थिंग, बट अगर आपको इन फ्यूचर में, अगर आपको रिसर्चेस मैम आप ग्रेजुएशन से भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये है कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें एमडी करना जरूरी है, मोस्ट ऑफ मेरे भी फ्रेंड्स ऐसे हैं जो एमडी नहीं कर रहे हैं बट वो प्रैक्टिसेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जरूरी है ये आपको समझना कि आपको अपना होम्योपैथी का फील्ड कहाँ लेके जाना। अकॉर्डिंग टू मी मैम, स्पेशलाइजेशन मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है लाइकोपोडियम का, हमने पढ़ा है प्लेटिना लेडी का, हमने पढ़ा है ऐसी ऐसी मेडिसिन जो हम लोग वर्कआउट करते हैं, हम लोग जो प्रिस्क्राइब करते हैं, बट क्या हमको ऐसा फील होता है कि क्या वो मेडिसिन हम लिटरेचर के अकॉर्डिंग दे, जो लिटरेचर में लिखा हुआ है। हमने पढ़ा है एक बेसिक मेडिसिन जो हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट मेडिसिन एकोनाइट। एकोनाइट हमने पढ़ा है कि उसको म्यूजिक अनबीरेबल होता है, टेंशन इज द की नोट है, और ऐसे ही बहुत से ऐसे कारण जो हम एकोनाइट को समझ लेते हैं। बट वाकई क्या लगता है कि आप एकोनाइट को वही बुक से आप थ्रू करो, मतलब बुक से ही प्रिस्क्राइब करो? क्या आपको रिसर्चेस या आपको उसमें गहन अध्ययन, मतलब एक हिंदी, टिपिकल हिंदी में बोल रहा हूँ कि उसको डीप नॉलेज या गहन अध्ययन करना जरूरी है? तो इन एमडी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके टाइम पे आपने मेडिसिन को बहुत डीप पढ़ा है, तो आपको लग रहा है कि हाँ आप ठीक हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप फ्यूचर में और अच्छा करना चाहते हो, आपको प्रोफेशनल वाइज, अगर आपको टीचिंग या फिर ऐसा ऐसे ऑफिशियली आपको टीचिंग करना है या ये सारी चीजें हैं, तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपको स्पेशलाइजेशन करना जरूरी है या नहीं। दूसरी चीज मैम, जैसे हमें पहली चीज ही यही होती है कि हमें बिलीफ होना चाहिए कि पहली बात तो फर्स्ट ईयर में ही, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, ये बहुत अजीब लगेगा कि बोलना तो नहीं चाहिए कि होम्योपैथी में पहले बिलीफ ही नहीं होता, कि फर्स्ट ईयर में बच्चा है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसको पढ़ना क्या है, समझना क्या है। वो सीधा सीधा फर्स्ट ईयर में आता है और वो मेंटेनेंस पे चला जाता है।
और मेंटल आप कैसे पढ़ोगे जब आपने मेडिसिन का बेसिक ही नहीं पढ़ा? आपने जैसे ऑर्गेनल में हम लोग पढ़ते हैं बेसिक नॉलेज, होम्योपैथी को कैसे हम लोग को काम करना है, तो वही चीज है, वो हम पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर हम मेडिसिन दे कैसे पाएंगे? तो स्पेशलाइजेशन में हम ये कर सकते हैं कि और डीप नॉलेज हम पढ़ सकते हैं, तो ये एक चीज है। और मैम, पेशेंट्स के प्रेफरेंस, आप एमडी जब आप करोगे, एमडी इन एनी सब्जेक्ट, आप ऑर्गेनल करो, इवेंचुअली हमको पेशेंट को सेटिस्फाई करना है उसके ट्रीटमेंट को। तो पेशेंट को ये नहीं पता आप एमडी हो, पीएचडी हो, आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से ऐड हो, आप सिर्फ डॉक्टर, पेशेंट को ट्रीट करें, तो आपको डिसाइड खुद करना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो, मतलब एमडी जरूरी है या नहीं। और आप अगर एमडी करोगे तो करियर ऑप्शंस आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम लोग को बोला ही है कि टीचिंग अगर करना है गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो हमको एमडी करना कंपलसरी है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके बकेट ऑफ लिस्ट में है, आपको फ्यूचर में अगर क्या करना है, या आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दैट्स माय आंसर मैम, ओवर टू यू मैम। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। यहाँ मैं कुछ ऐड करती हूँ। जब मैंने बीएचएमएस किया था, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि मुझे बहुत फैसिलिटीज थी, वाज देयर, बहुत डिफिकल्टी थी सीखने में, करने में, और मुझे लगता नहीं है कि आज कोई बच्चा ऐसा करेगा कि फ्री में जाके 2 साल 3 साल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सर्व करेगा, है ना। आई हैव ऑल्सो सीन वेरी हार्ड टाइम एंड हाउ थिंग्स आर इन यूपी। यस मैम। दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव स्ट्राइव थ्रू, मैंने मेहनत की। लेकिन जब मैंने एमडी में एडमिशन लिया ना, एंड आई केम टू महाराष्ट्र ऑल द वे फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई वाज लिटिल लाइक शॉक। मुझे ऐसा लग रहा कि कुएं का मेंढक ही है मैं। बट आई नो ड्यूरिंग बीएचएमएस केस लेना है, सिम्टम लेना है, माइंड ही लेना है, रिपर्टराइज करना है, रूब्रिक सीखने हैं। उसके बाद जब रिपर्टराइज करते हैं तो सल्फर लाइको कैलकेरिया लेकेसिस सेपिया, सेपिया लेकेसिस कैलकेरिया लाइको सल्फर, यही आनी होती है। फिर मैं पेशेंट से बैठ के पूछूंगी, थर्मल थर्स देखूंगी, दवाई दूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैं व्हेन आई केम टू महाराष्ट्र, देन आई केम टू नो कि देयर आर समथिंग कॉल्ड बायोकेमिक्स, there is something called molecular imprint theory, there is something called active principle, there is something called mother tincture also। मुझे सिर्फ बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंचर पता था, दिल से बोल रही हूँ, पूरा बीएचएमएस पढ़ने के बाद भी मुझे एक ही मदर टिंचर पता था, ठीक है। व्हेन आई केम टू महाराष्ट्र, मेरी तो आंख खुल गई। मैंने बोला अरे, यहाँ तो ग्रुप स्टडी भी होती है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आप कोई भी फंगस ले लोगे, they'll have a strong action on uterus and they'll have a strong action on sexual desires। And then I realized that actually nymphomania, masturbation aggravation from, masturbation ailments from, है ना, hemorrhages, लिबिडो या इनकॉम्पिटेंसी, मैं बोला ये सब तो फंगस में एक साथ है। ऐसा कभी मैंने क्यों नहीं सोचा, सारे मेडिसिन पढ़े, पर ऐसा क्यों नहीं सोचा कि ये फंगल ग्रुप के मेडिसिन में ऐसा हो सकता है। Then I realized, then one of my teacher told me, I'm very big fan of Dr. TB Galande ma'am, she is HOD of repertory DY Patil। उन्होंने मुझे बोला कि you have taken admission in MD, now you have to speak something or you have to do something that makes you different from a BHM student। वो बात इतनी लग गई मुझे। उन्होंने बोला कि you should be always logical, you have to be very authentic before you open your mouth, because the responsibility of homeopathy is little more on your shoulders। People will look like this के एमडी स्टूडेंट है, या look like this के इसने एमडी किया है, तो ये जो बोल रही है ये रेफरेंस देगी। फॉलोइंग बुक में you have to open the chapter number this and this page number, you go and read it, वहां मिलेगा। So in my opinion, आप प्रैक्टिस करें, आप जॉब करें, आप कुछ भी करें, but once you enter in MD, it is, you are bound to be more logical and authentic। I'm sorry, आप लोगों का गेस्ट टॉक है, बस एक लास्ट बात ये है भाई, मैंने किसी को पूछा, किसी ने मुझे बोला कि भाई ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, सेपिया ऐसे बैठते हैं। मैं पूछा क्यों बैठते, पता नहीं हमारे सर ने बताया था। मैंने बोला तुम्हारा सर कौन है बे, हु इज योर सर। आप समझ रहे हैं व्हाट इज गोइंग अराउंड इन होम्योपैथी, ये हमारी साइंस है ना।
और इज्जत हमको दिलवानी है। किसी को भी मेरे किसी भी वर्ड से प्रॉब्लम हो तो मुझे आराम से डीएम कर दें, अनफॉलो कर दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन समवन इज सेइंग दिस कि हमारे उन्होंने बोला है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बोला है, एंड आई एम वेरी श्योर कि उनके पास कोई ना कोई एक रीजन रहा होगा, उन्होंने कहीं पढ़ा होगा। सो प्लीज हैव अ प्रिविलेज टू आस्क, सर क्यों? ऐसा नहीं है रीजन नहीं होगा, पर रीजन ये नहीं है कि हमारी मैम ने सिखाया, हमारे सर ने सिखाया। आई नेवर आस्क माई इंटर्न्स टू टेक और टू utter my name for the sake when they are saying something. You better take a book, take a name of a stalwart and tell them the chapter number and page number कि यहाँ लिखा है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अभी तक डॉक्टर अंकुर आपने बताया बहुत सारे, आपने हमें organon actually how it is related to materia medica. I would like to know, can you elaborate with few examples कि ये जो outline है organon का, how it plays important role? मैम उस चीज को बताने से पहले जो अभी आप बात कर रहे थे, तो उससे मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि हमारे एचओडी हैं ऑर्गेनॉन के, डॉक्टर प्रोफेसर राशिद अख्तर सर। तो वो जब आते हैं क्लास में और वो कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, तो वो बच्चों से पूछते हैं कि आप बताइए आपके व्यूज क्या हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में सब एक बेसिक पढ़ के आ रहे हैं। और फिर वो बोलते हैं जो व्यूज आपके हैं, उस व्यू को कहाँ पढ़ा, किस किताब में पढ़ा, उसको बताइए, रेफरेंस बताइए, और फिर मैंने कहाँ पढ़ा, मैं अपना रेफरेंस बताऊंगा। और अगर रेफरेंस नहीं है तो तो बात बात वैलिड नहीं है। खत्म। एग्जैक्टली। जी मैम। तो मैम कमिंग टू द क्वेश्चन, एक ऐसा केस था मैम पोस्ट ग्रेजुएशन में जो मैंने देखा था, जिसके बाद ये जो बिलीफ है ना, जो डॉक्टर आशुतोष बात कर रहे थे कि बिलीफ नहीं होता बच्चों को, ये बिलीफ मेरे अंदर आ गया कि ऑर्गेनॉन में एमडी करना वर्थ इट है। मैम एक केस आया था, एक डिप्रेसिव पेशेंट था, फीमेल थी, एंड हम एज यंग होम्योपैथ, हम अगर हमें कोई प्रोमिनेंट सिम्टम मिल जाता है तो हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं ड्यूरिंग केस टेकिंग। तो सुसाइडल आइडिएशन उसमें मिला, और हम उस समय डिप्रेसिव पेशेंट है, सुसाइडल आइडिएशन मिल रहा है, तो बहुत एक्साइट हो गए कि अब इसी मतलब एरिया में दवाई जाएगी। और फिर इवेंचुअली जब प्रिस्क्रिप्शन हुआ उसका, हमारे सीनियर थे जो प्रिस्क्राइब कर रहे थे, और हम माइंड में एक दवाई बना के बैठे हुए थे कि ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है, जिसमें सुसाइडल आइडिएशन एक की नोट होगा। पर जब दवाई प्रिस्क्राइब करी गई तो सुसाइडल आइडिएशन को इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया गया। तो अब हम लोग हैरान हो गए कि ऐसा क्यों किया, मतलब इंपॉर्टेंस दिया भी गया तो बस एक टोटालिटी में कवरेज रखने वाला इंपॉर्टेंस, वो की नोट वाला इंपॉर्टेंस नहीं जो कि इतना प्रोमिनेंसी में मिल रहा था। तो फिर ये हैरानी जब हुई और जब हमने पूछा अपने सर से कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बोला कि इसकी जो प्रीवियस मेडिकेशन चली है, एंटी डिप्रेसेंट्स चले हैं, उसका नाम तुमने देखा? मैंने बोला हाँ सर देखा। बोले जाओ गूगल पे जाओ, इसका सर्च करो, इस दवाई का साइड इफेक्ट सर्च करो। तो मैम आप मानोगे नहीं, जब हमने उस दवाई को खोला और उसका इतना बड़ा डिस्क्लेमर लिख के आता है उस दवाई को, आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हो उसके पहले कि दिस मेडिसिन प्रोड्यूसेस सुसाइडल आइडिएशन, सो काइंडली पहले आप लुक आफ्टर कर लो कि ये दवाई के बारे में आपको सोचना है कि नहीं सोचना है। और फिर उन्होंने बोला कि ऑर्गेनॉन में अफोरिज्म 204 खोलो, और 204 अफोरिज्म जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डॉक्टर हनीमैन साफ बताते हैं कि पहले डिडक्ट कर लो वो सारे सिम्टम्स या वो सारे एलिमेंट्स जो कि अनहेल्दी मोड ऑफ लिविंग से आ रहे हैं, फिर डिडक्ट कर लो वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे डिजीजेस जो कि एलोपैथिक मेडिकेशन के इफेक्ट से आ रहे हैं, और फिर जो बचेगा वो ट्रू माइजमेटिक डिजीज होता है। तो सर ने बोला ये जो आप सुसाइडल आइडिएशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ये एलोपैथिक मेडिकेशन का साइड इफेक्ट है, ये पेशेंट का ट्रू सिम्टम नहीं है, तो आप इसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ कि क्लिनिक में पेशेंट सामने बैठा है और ऑर्गेनॉन का 204 अफोरिज्म डिसाइड करने में हेल्प कर रहा है कि दवाई कौन सी जाएगी और इंपॉर्टेंस किस सिम्टम को देना है। तो ये जो मैम एक इंसिडेंस था ना, ये उसके बाद से मैं समझ गया कि नहीं, ऑर्गेनॉन ऐसे ही नहीं लिखी गई है कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनॉन। ओवर टू यू मैम। दैट्स वेरी ट्रू। आई मीन अभी मैं बॉम्बे सेमिनार अटेंड किया था, मैंने डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर को सुना था। उन्होंने एक बात कही थी कि जब भी हम कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर लेते हैं, बीपी का, शुगर का, थायराइड का, आपको पेशेंट की सही पिक्चर नहीं मिल सकती, क्योंकि पेशेंट इज ऑलरेडी टेकिंग मॉडर्न मेडिसिन। जो भी उसके थायराइड के सिम्टम्स है, उसको वो थायरोनॉम, थायरोक्सिन, जो भी मेडिसिन ले रहा है, यू आर नॉट गेटिंग। और हम लोगों में ही वॉज क्वेश्चनिंग ऑल द होम्योपैथ्स आउट देयर कि आप लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप पेशेंट की मेडिसिन तुरंत विड्रॉ करा के और आप उसके सिम्टम परसीव कर सके और उस पर दवाई दे सके।
That was actual and बहुत ही beautiful example of aphorism 204. Thank you so much, Doctor अंकुर. You have enlightened us. मतलब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. और अभी तो शाम बाकी है. अभी तो शबाब चढ़ेगा हमारे गेस्ट टॉक पे. अगला क्वेश्चन डॉक्टर आशुतोष के लिए. Yes, ma'am. अभी ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एमडी कर लिया या एमडी आगे प्रैक्टिस के लिए नहीं, आगे लाइफ में आगे करने के लिए करते हैं. So, if a student is doing MD in any subject, okay, so we would like to know the job opportunities a student can seek after doing post graduation in homeopathy. Ulman? हाँ, Okay. yes, yes. So, पहली चीज ये बोलने से पहले डॉक्टर अंकुर हैज टोल्ड अस वेरी ब्रीफिंग थिंग्स अबाउट ऑर्गेनिक. बट एक चीज मैं ऐड करूंगा. मेरे पास एक केस था एंड इट वाज द केस ऑफ, मतलब मैं अपनी लाइफ में बिलीव नहीं कर सकता कि वो केस मेरे पास है. बात क्या है कि उस पेशेंट को हेड इंजरी हुई और उसको सीएसएफ राइनोरिया का हुआ था. एंड बहुत से लोग जानते हैं, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला भी था उसकी स्टोरी. और वो पेशेंट, मैं जब हिंदी में आया, और हम लोग बोरिक मटीरियल मेडिका पढ़ते हैं बट हम लोग कभी उसको उतना ज्यादा गौर से नहीं देखते. तो सीएसएफ राइनोरिया और उसको पास्ट हिस्ट्री था हाइड्रोसेफेलस. अब वो पेशेंट को जब मैंने केस टेकिंग किया, उसके बाद सब करने के बाद में मैंने उसको एक मेडिसिन दी जिसका नाम है हेड्रा हेलेक्स. हेड्रा हेलेक्स हम लोग बोरिक मटीरिया मेडिका में मिल सकती है. और ये मेडिसिन ऐसी है जो हाइड्रोसेफेलस है और प्लस उसके सीएसएफ राइनोरिया, ये दो ही बुक्स में मिलती है, क्लार्क और बोरिक में. तो मैम ये एक बहुत ही अच्छी चीज बताई कि हम लोग एमडी कर रहे हैं तो उसमें हम क्या इंसाइट हम डाल सकते हैं विद द मेडिसिन. ओके. दूसरी चीज मैम, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हम लोग एमडी करने के बाद में उसका क्या फायदा होता है, या जरूरी है क्या कि हम एमडी कर लें और उसके बाद में हम सिर्फ बैठे रहे, क्लिनिक खोल लें, दीज ऑल द थिंग्स. सो पहली चीज, हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस एनलाइट हो जाता है कि यस, दिस डॉक्टर इज एमडी फिजिशियन, यस वी हैव टू गो विद दैट डॉक्टर. ठीक है. दूसरी चीज कि मेरे एक बहुत ही क्लोज टीचर और बहुत ही क्या बोलते हैं उनको, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आप सब जानते हैं, डॉक्टर निहारिका जैन. मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ. क्यों? क्योंकि उन्होंने एमडी किया एंड नाउ शी इज इन सीसीआरएच, है ना मैम. तो हम लोग ये देख सकते हैं कि वो क्यों उन्होंने चुना हो. बट मेरा थॉट प्रोसेस यही है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम लोग रिसर्च एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी जो होती है वो हम लैक कर रहे हैं होम्योपैथी में. तो वही चीज है कि हम रिसर्चर्स जब जाते हैं तो हमारी पहली अपॉर्चुनिटी खुल जाती है टीचिंग्स की. फिर अगर आपको रिसर्च करना है तो हमारे जो सीसीआरएस लेवल्स पे, एनसीएस लेवल्स पे हम लोग जो जाते हैं तो वहां पे हम वो जा सकते हैं. ठीक है. दूसरी चीज, हम ये भी देख सकते हैं कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में या जो कंसल्टेशन होता है, मतलब हाई हॉस्पिटल्स में हम लोग बैठ करके कंसल्टेशन दे सकते हैं. तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं कि एमडी कर लिया, टीचिंग करना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसके बाद में आगे हम कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट कि आप एमडी के बाद में ये प्लेटफॉर्म्स आप चूज कर सकते हो. ओवर टू यू मैम. That's absolutely very true. और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करूंगी. इट वॉज वेरी एप्ट डॉक्टर आशुतोष. यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे से फीस ले सकते हैं पेशेंट से. पेशेंट बीएचएमएस वाले को इतना अच्छा फीस नहीं देगा, चाहे आपकी प्रैक्टिस को 10 साल 12 साल हो जाए. एंड डेफिनेटली अगर इफ आई एम अ पेबल पेशेंट, सो आई विल डेफिनेटली लुक फॉर एन एमडी फॉर माई फैमिली, फॉर माई रिलेटिव, फॉर माई क्लोज वन. आप लोग मानते हैं इस बात को या नहीं मानते? आप भले ही जी मैम, बिल्कुल. साल के लिए किसी से भी ले लें. एंड यू नो, एक चीज जो दुखती भी है मुझे, एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड,
लोग अगर मेरा अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है, मेरा टाइम मैच नहीं कर पाता, तो आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने रात तो लोकल डॉक्टर से दवाई ले ली थी, सुबह उठते ही आ गए। दे कंसिडर देम एज दुख की बात है भाई, पढ़ाई उसने भी की है, अपने सर्कमस्टांसेस एमडी कर पाए या नहीं कर पाए, बट स्टिल दे कॉल इट एज लोकल डॉक्टर। पता नहीं आप लोगों को कह नहीं, पर यहाँ बहुत ज्यादा ट्रेंड में चलता है। बोलते हैं Alright. बाजू के डॉक्टर से, लोकल डॉक्टर से, नीचे वाले डॉक्टर से दवाई ले ली थी, आपका अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया तो आपसे बात नहीं हो पाई। सो मुझे ऐसा लगता है कि एमडी आपको सोसाइटी में एक प्रेस्टीज भी दिलाती है। ओके, आगे चलते हैं। डॉक्टर अंकुर के लिए मेरा सवाल ये है कि आपको अभी एमडी ऑर्गेनल में कितना टाइम हुआ? मैम एज अ अराउंड रेजिडेंट 1.5 ईयर्स हो गए 1.5 ईयर्स हो गए। जी। आ, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मैं आज की क्लिनिकल प्रैक्टिस, वो जो दौड़ भाग वाली क्लिनिकल प्रैक्टिस है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन हैज टेकन अ बैक सीट व्हेन इट कम्स टू टुडेज क्लिनिकल प्रैक्टिस। आपका टेक क्या है इसके ऊपर? आपको क्या लगता मैम अगर हम मैम ऑर्गेनॉन को बैक सीट पे जाने की बात करेंगे ना, तो मैम हिस्टोरिकली अगर इस चीज को देखा जाए तो मैंने डॉक्टर रीमा हैंडली की किताब है इन सर्च ऑफ लेटर हनीमैन, उसमें वो एक इंसिडेंस बताती हैं जहां पर पेरिस में जब हनीमैन प्रैक्टिस करने गए थे तो उन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म करी और उसमें प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनॉन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होम्योपैथी करने के लिए मतलब मोटिवेट करा लोगों को। और फिर धीमे धीमे उन्होंने देखा कि उसमें से कुछ लोग कुछ अपना होम्योपैथी चालू कर दिए, कुछ कुछ अपने तरीके से चालू कर दिए, तो उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ये कहते हुए कि मुझे सिर्फ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स पे होम्योपैथी प्रैक्टिस करनी है ऑर्गेनॉन के, कुछ भी मतलब, क्योंकि मैम हम डायनेमिक है ना, तो डायनेमिक की कोई बाउंड्री नहीं है। डायनेमिक के नाम पे बाउंड्रीज इतनी एक्सटेंड हो गई हैं कि अब होम्योपैथी के नाम पे कुछ भी चल रहा है। तो मैम उन्होंने वहां पर ये चीज बोली और वही वो एड्रेस था मैम जहां पर उन्होंने पहली बार मॉन्ग्रेल सेक्ट बोला था और उन्होंने बोला था है? सो कॉल्ड होम्योपैथ, वो एड्रेस था उसी कन्वेंशन का। और उसके बाद मैम हम एक डॉक्टर एंड्रयू सेन करके हैं, कैनेडियन होम्योपैथ हैं, उनको एक आर्टिकल में पढ़ा था तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है अमेरिका में इतने मतलब प्रोलिफिक होम्योपैथ्स रहे और फिर डिक्लाइन क्यों हुआ? तो उन्होंने एक जवाब दिया, उन्होंने बोला कि 1880 में 6000 होम्योपैथ्स थे अमेरिका में और उनमें से 4800 होम्योपैथ्स जो थे वो ग्रेजुएट थे जो कि कॉलेजेस से पढ़ के आए थे अमेरिकन। और उस समय तक अमेरिका में सिर्फ 600 कॉपीज ऑफ ऑर्गेनॉन सोल्ड हुई थी और वो 600 कॉपीज ऑफ ऑर्गेनॉन भी लेमेन ज्यादा खरीद रहे थे क्योंकि डॉक्टर लिप्पे जैसे प्रिस्क्राइबर्स बोलते थे अपने पेशेंट्स को कि आप ऑर्गेनॉन पढ़ के देखिए। तो आउट ऑफ 6000 होम्योपैथ्स 600 ऑर्गेनॉन सोल्ड हुई हैं, तो उन्होंने बोला एजुकेशन वाज द मेन रीजन व्हाई होम्योपैथी डिक्लाइंड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। एंड अगर मैम हम यहां पर भी बात करें तो यही एक रीजन है। डब्ल्यूएचडी का सेमिनार मैम मैं अटेंड कर रहा था दिल्ली में, डॉक्टर सुभाष सिंह आए थे एनआईएच के, तो एनआईएच की बहुत तारीफ हो रही थी मैम की, नंबर ऑफ पेशेंट 3000 2500, मिनिस्टर्स तारीफ कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी स्पीच में एक बात बोली और वो बात मैम मेरे घर कर गई सर में कि ये बात ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला एनआईएच एनआईएच है क्योंकि एनआईएच में प्रिस्क्राइबिंग ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग होती है, आप ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन को हटा दीजिए तो एनआईएच की वो इंपॉर्टेंस भी हट जाएगी। तो मैम इसी तरीके से बैक सीट तो वो हिस्टोरिकली लेता ही चला आ रहा है, पर अगर हम यूजी लेवल पे ही इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करना दिखाएंगे, बच्चों को केसेस के थ्रू दिखाएंगे, जैसे मैंने देखा मेरे सीनियर ने दिखाया कि आप खोलो 204 और देखो कि क्लिनिक में काम आ रहा है, ये घर में थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो आप। तो अगर ऐसे आप इंसिडेंट्स दिखाओगे बच्चों को शुरुआत से यूजी से और पीजी में फिर अप्लाई करने को बोलोगे कि अब आप केस देखो और अप्लाई करो इन प्रिंसिपल्स को, तो मैम वो बैक सीट से फ्रंट सीट पे आने वाला काम हो जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बीच में से मेरे क्वेश्चंस के बीच में से मेरे गुरु का क्वेश्चन आया है डॉक्टर शिव बॉस का। वो पूछ रहे हैं कि हाउ टुडेज टीचिंग कैन बी इम्प्रूव्ड if you are a teacher of a UG student, and as a student, I also like to hear from both of you. He's also a teacher, he's a professor, Yes. and UPSC क्लियर किया है उन्होंने और मेरे भी इंस्पिरेशन है, he has always helped me. तो पहले डॉक्टर आशुतोष मैं आपसे पूछूंगी डॉक्टर शिव Yes, का, ma'am. शिव बॉस का क्वेश्चन बताइए, आप कैसे Ma'am, पढ़ाना चाहेंगे? uh, thank you so much. And I respect Sid sir. Uh, तो बात ये आती है
कि एक बार मैं क्वेश्चन एक बार फिर से देखना चाहूंगा, मैं देख ले रहा हूँ मुझे। मैं बताती ठीक हूँ, है। हाउ टुडेज टीचिंग कैन इम्प्रूव जी। इफ यू आर टीचिंग अ यूजी स्टूडेंट्स. Okay. So basically, ma'am, what I prefer in teaching in my college also. Basically, I do my best to think of that medicine जहां से वो बनी है. जैसे uh, उसके बेसिक्स को समझने के लिए आपको पहले मेडिसिन को समझना होगा. हम ये नहीं कह सकते आप सीधा चले जाओ मेंटल्स पे. आप प्लेटिना की लेडी को ये देख लो कि बहुत ज्यादा वो ओवर प्रोसेस रहती है, वो बहुत ज्यादा अपने आप को हाई यील्डिंग समझती है, वो आपको ये समझती है कि अपने सबको वो नीचा समझती है ना. तो हम ये नहीं कह सकते कि प्लेटिना लेडी है, कुछ ना कुछ होगा. हम देखें जो प्लेटिनम मेटालिकम से बनी है, तो जो एलिमेंट है, एलिमेंट इटसेल्फ बहुत ज्यादा वो अपने आप को वो समझता है. इसीलिए अगर हम मेडिसिन को हम उस तरीके से समझेंगे तो वो है, जैसे हमने एकोनाइट का जो ओरिजिन होता है वो हम देखते हैं कि वो माउंटेन्स, हिमालयन रीजन्स पे वो स्टोन, बिटवीन द स्टोन्स पे वो डेवलप होता है. तो उसका जो टेंशन, उसको घबराहट जो लगती है, जो उसकी नॉर्थ वेस्ट विंड लगती है, तो वो सारी चीजें हैं, उसको बेसिक समझाना. ओके. सो सर ने ये भी कहा है टीचिंग मेथडोलॉजी में क्या क्या हम लोग करेंगे. तो वही चीज है कि हम लोग उनको समझाएं पहले कि आपको सीधा कंक्लूजन पे नहीं जाना है. उनको बेसिक्स पहले समझाना है कि उसकी बेसिक नॉलेज क्या है. जैसे मैम, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. मैं जब एलेन की नोट पढ़ता था या पढ़ रहा हूँ, अभी भी मैं एलेन पढ़ता हूँ, तो मैंने एक एब्रोटिनम पहली बुक में, एज यू कैन सी, मेरी एक खिचड़ी बनी हुई है. बट मैं इस मेडिसिन के ऊपर क्लास भी लिखा हूँ, फार्मेसी का, वो बनी कैसे, कौन से जैसे एब्रोटिनम है क्लास 3 की प्रिपेयर्ड मेडिसिन है, फ्रेश लीव्स और स्टेम से बनती है. बट ये चीज अगर बच्चों को हम कंपैरेटिवली अगर पढ़ाते हैं तो बच्चों को अच्छे से समझ जाएंगे. और उसके बाद में हम इस पे कंपेयर भी कर सकते हैं कि मेडिसिन को हम किस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं. तो ये एक चीज है मैम, जो कि हम लोग उनको और अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स नहीं क्लियर होगा, क्योंकि बेसिक्स नहीं क्लियर होता है, सीधा कंक्लूजन पे आते हैं. ठीक है. तो ये बेसिक्स सबसे पहले मैं, मेरे पर्सपेक्टिव से यही होगा. ओवर टू यू डॉक्टर. डॉक्टर अंकुर, व्हाट यू थिंक, कि आप मैम कैसे मेथोडोलॉजी पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को, शायद जो आपको मैम नहीं जब मिला वो आगे आने वालों को मिले. जब ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की बात होती है मैम, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है मुझे कि हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन को साथ में कोरिलेट करके ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन से पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं ट्राई कर रहा हूं अपने पीछे में, क्योंकि हम यूजी टीचिंग करते हैं पीजी में, करिकुलम में. तो मैंने ट्राई करा, तो उससे मैम एक चीज होती है कि वो बिलीफ बनता है लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, कि ये होम्योपैथी हफजार्ड नहीं है, यूं ही नहीं लिख दी गई है, उसके पीछे का कोई रीजन है. और जैसे मैम आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेंटल डिजीज पढ़ाने से पहले, अगर ऑफरिज्म पढ़ाने से पहले यहाँ पर मैंने एक बार पढ़ाया था, तो उससे पहले मैं उनको एक इंसिडेंस बताता हूँ कि फिलिप पाइनल करके एक थे, जो कि फर्स्ट मेंटल हेल्थ रेवोल्यूशन के पाइनियर माने जाते हैं साइकोलॉजी की फील्ड में. उन्होंने क्या किया था कि पेरिस में एक अस्पताल था, ला बिसेट्रे करके, वहां गए और चेन्स को खोला और बोला कि मेंटल पेशेंट्स को चेन में नहीं रखना है, उनको काउंसलिंग करनी है, उनको ढंग तरीके से ट्रीट करना है. पर लोग ये रियलाइज नहीं करते, इन द सेम ईयर हनीमैन भी क्लॉकेनबर्ग को ठीक कर रहे थे, जो कि एक मेंटल पेशेंट थे, और उनको ठीक करते हुए वो भी यही कह रहे थे कि इनको चेंज में नहीं रखना है. आप डॉक्टर रिचर्ड हेल की किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि क्लॉकेनबर्ग रोते हुए उनको अपने निशान दिखा रहे हैं कि कैसे मेरी रस्सी बांधी जाती है, और हनीमैन उसको बता रहे हैं कि when he described his problems, वो रोते थे मेरे को दिखाते हुए कि मुझे ऐसे ट्रीट करो, और आप पहले हो जो मुझे अच्छे से बात कर रहे हो, अच्छे से ट्रीट कर रहे हो. तो वो सेम ईयर था, पर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती उस बात को, इंपॉर्टेंस दी जाती है फर्स्ट मेंटल हेल्थ रेवोल्यूशन में फिलिप पाइनल को. तो मैं बच्चों को बताता हूं कि हमारे जो स्टॉलवर्ड थे, हमारे जो फाउंडर थे, उनका भी फोर साइटेडनेस उतना ही था,
जितना आप और फील्ड्स के फाउंडर्स का पढ़ते हो। पर आपको पढ़ना पड़ेगा, उनकी किताबों को पढ़ना पड़ेगा, लेसर राइटिंग को पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, जानने के लिए कि वो सेम इंपॉर्टेंस है। तो मैम इस तरीके से हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन का अगर आप को रिलेशन करेंगे ऑर्गेनॉन में खासकर, तो मुझे लगेगा कि बहुत अच्छा होगा। That's very true. Uh, Thank you so much, boss. He's saying both are excellent and they will take to system to new dimension. Very nice. Blessing from boss means a lot, a lot. Yes. Okay. तो अगला सवाल मेरा डॉक्टर अंकुर से है। डॉक्टर अंकुर, कुछ कुछ बुक्स के बारे में एनलाइटन कीजिए, कुछ और की ऐसी कुछ मोती, कुछ किताब बताइए जो हमें पढ़ने चाहिए एज अ बेसिक। अगर किसी ने एमडी मटीरियल मेडिका किया है तो वो भी पढ़ सके, ऐसा अपने लेवल का दिग्गज नहीं, बेसिक बीएचएमएस के स्टूडेंट भी पढ़ सके। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि स्क्रीनशॉट ले ले जो जो किताब उनको पसंद आए। तो ओवर मैम टू यू। सबसे पहले तो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो हम डॉक्टर आर ई डर्जन का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ऑर्गेनॉन का 5th and 6th एडिशन का, इसको बहुत जरूरी है समझना और अच्छे से पढ़ना। अब मैम मल्टीपल ट्रांसलेशंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ऑर्गेनॉन को समझना है तो मल्टीपल ट्रांसलेशन में 3 इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस हैं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। आर ई डर्जन में जो इंग्लिश है कभी कभार बहुत टिपिकल हो जाती है मैम, तो उसको डिकोड करने के लिए, तो उसमें से एक है डॉक्टर ओराइली की ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन का ट्रांसलेशन है। इसको अगर आप ले लेंगे और इससे क्या होता है, जो इंग्लिश वहां पर टिपिकल लैंग्वेज में लिखी है उसको एक सिंप्लीफाइड वे में समझा दिया है उन्होंने, एक सिंपल भाषा में समझा दिया है। डॉक्टर बोरिक की 6th एडिशन की ट्रांसलेशन है, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। एक ट्रांसलेशन का पीडीएफ है मेरे पास डॉक्टर कुंजली की, वो भी यही सेम पर्पस सॉल्व करती है कि आपने एक चीज पढ़ी, जैसे मैम मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा। अफोरिज्म 7 के फुटनोट में लिखते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी टू से दैट द इंटेलिजेंट फिजिशियन वुड फर्स्ट रिमूव दिस वेयर इट एग्जिस्ट। अब ये दिस क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, क्या एग्जिस्ट करता है, क्या हटाना है, तो वो वहां पर बच्चा कंफ्यूज है और वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि ये इंटेलिजेंट फिजिशियन को बताने की जरूरत ही नहीं है, उसको पहले से पता है कि इसको हटाना है। तो अब वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो कई बच्चे उसको लिटरल ले जाते हैं कि जरूरत ही नहीं है, हटा दो। तो इसको ओरेली में कितनी सिंपल भाषा में लिख दिया, इट गोज विदाउट सेइंग दैट द इंटेलिजेंट फिजिशियन वुड इमीडिएटली केयर अवे द मेंटेनिंग कॉज। तो वहां पर जो घुमा फिरा के बात कही उसको एक सिंपल भाषा में कि अगर इंटेलिजेंट फिजिशियन है आप तो पहले मेंटेनिंग कॉज हटा दीजिए। तो मल्टीपल ट्रांसलेशन पढ़ने से ये सिंप्लीफाई हो जाते हैं, ये टेक्स्ट सिंप्लीफाई हो जाते हैं। उसके बाद मैम अगर हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं तो डॉक्टर हनीमैन खुद बोलते हैं कि अगर आपको क्रॉनिक डिजीज के थ्योरी के बारे में पढ़ना है तो मेरा क्रॉनिक डिजीज का बुक पढ़िए जाके, वो खुद फुटनोट में लिखते हैं, क्योंकि इसमें वो आपको माइज्म के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। उसके बाद में कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो कि जैसे मैंने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन का जो एस्पेक्ट बताया था कि कहां पर ये आइडिया कंसीव करा गया और अब ऑर्गेनॉन में ये आइडिया आप पढ़ रहे हो, तो उसके लिए मैम लेसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट किताब है डॉक्टर हनीमैन की। अगर आप लेसर राइटिंग पढ़ेंगे, उनकी प्रीवियस राइटिंग्स पढ़ेंगे, तो वहां से आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। और इसी पर्टिकुलर फील्ड में डॉक्टर रिचर्ड हेल की लाइफ एंड हिज वर्क ऑफ डॉक्टर हनीमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। फिर कुछ एक दो किताबें हैं मैम जो ऑर्गेनॉन के टेक्स्ट आप पढ़ लिया, आपने अफोरिज्म समझ लिया, मल्टीपल ट्रांसलेशन से समझ लिया, अब दूसरे के कुछ व्यूज जानने, कोई बड़े स्टॉलवर्ड जिनके व्यूज जान के आपको लगता है कि एक माइंड क्लियर होगा कि अच्छा ये एक्चुअल में बात कही जा रही है, तो उसमें मैम सबसे मेन किताब आती है डॉक्टर बीके सरकार की कमेंट्री ऑन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, और उसके बाद मैम डॉक्टर आर आर जोरदार की डिक्शनरी ऑफ ऑर्गेनॉन। ये दो किताबों को अगर आप पढ़ते हैं तो और क्लैरिटी बनती है और मतलब दिमाग में साफ होता है कि अच्छा ये बात कही गई है। और मैम अगर पढ़ने की बात करें तो दो चीज मैं बोलूंगा, इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ें, जो कंटेंट दिया है शॉर्ट में, अफोरिज्म्स को शॉर्ट में लिखा है, फिर अफोरिज्म लिखे हैं, फिर अपेंडिक्स लिखा है, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, पहले कंटेंट को शॉर्ट में पढ़िए कि एक्चुअल जिस्ट क्या है जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी, फिर उसको रियलिटी में पढ़िए, उसको समझिए, उसको डिकोड करिए और इन किताबों का इस्तेमाल करिए।
और अपेंडिक्स जहां पर ए ब्रैकेट में ए लिखा रहता है कई अफोरिज्म्स में, बहुत लोग मिस करते हैं कि ए क्या होता है। ए इज आपको अपेंडिक्स जाने को बोल रहे हैं उस अफोरिज्म में, वो बोल रहे हैं अपेंडिक्स जाइए और पढ़िए कि ये आइडिया कहां से कंसीव करा गया। तो मैम इन कुछ स्टेप्स से ऑर्गेनॉन की अफोरिज्म्स को बेहतर तरीके से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा जा सकता है। दैट वाज सो गुड। और बहुत सारी किताबें तो मैंने देखी हैं पर मैंने भी पढ़ी नहीं है, पर आई विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू इट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर आशुतोष। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि मैम मटीरिया मेडिका इतनी बेवफा, रात को पढ़ो और सुबह को सफा, सारे मेडिसिन एक जैसे लगते हैं। और एक एक पढ़ो तो सल्फर पढ़ने बैठो तो 90-90 पेज की सल्फर है। अगर आप कोई फ्लिप एंड बेली जैसे बुक या कैंट के लेसर राइटिंग्स पढ़ने बैठते हैं तो ये जो खिचड़ी हो जाती है, ये सब मटीरिया मेडिका मिक्सअप हो जाता है, तो मेडिसिन को रिमेम्बर, इनको याद कैसे करें? और दूसरा सवाल साथ ही में दे रही हूँ मैं कि आप भी कुछ लिस्ट ऑफ बुक्स ऐसी बताइए जो मटीरिया मेडिका की पढ़ने से हमारी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस थोड़ी एनलाइटन होगी। ओवर टू यू डॉक्टर आशुतोष। थैंक यू सो मच मैम। मैम इट्स अ वेरी फनी क्वेश्चन, और सही बात है, ये चीज खिचड़ी इतनी बनती है, ये सारे होम्योपैथ्स के साथ में होता होगा जब वो अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इट्स अ फनी थिंग मैम, हम लोग सब एसके दुबे पढ़े हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं है, वो ये नहीं कह सकता कि नहीं हम एसके दुबे कभी छुए नहीं है, कभी पढ़े नहीं है। तो एक बार इंसिडेंट था यहाँ पे, लोकल डॉक्टर ने एक बहुत ही सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, उनके पास में गया। मैं एसके दुबे पढ़ रहा था, उन्होंने बोला बेटा थोड़ा देर के लिए बाहर बैठ, एंड वो थोड़ा देर वाज लाइक 3 आवर। फिर मैं बाद में जाके गया, सर क्या हुआ? तो उन्होंने बैठने को भी नहीं बोला, उन्होंने सीधा बोला जब तुम एसके दुबे से तुम क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हारा एलन बोरिक क्या होता है? एलन बोरिक कहाँ गई? तो मैं उस टाइम पे ये सोच रहा था कि क्या एलन बोरिक भी है कोई बुक? मतलब ये चीज होती है कि उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, ये मेरे फर्स्ट ईयर की बात है, जबकि मैं 6 महीना हुआ था मुझे अपने एडमिशन को लेकर के। तो मैम जो आपने पहले पूछा कि मिक्सअप हो जाता है, खिचड़ी हो जाता है, तो उसका बेसिक रीजन ये है कि आपको रीडिंग्स करनी पड़ेगी, सीधा सीधा रीड, लर्न, apply. Read, learn and apply. These 3 things is very beneficial for every homeopath. अगर आप रीड नहीं करोगे, आप तो उसको समझ नहीं पाओगे, उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। रीड, लर्न एंड अप्लाई, दीज 3 थिंग्स। तो मैम मेरे पास 2 कैटेगरी में बुक्स हैं, उसको मैं बताना चाहूंगा। 2 कैटेगरी में क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द होम्योपैथ्स क्लिनिकल प्रैक्टिस को प्रेफरेंस करते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। और उसको बोलने से पहले मैं डॉक्टर अंकुर की जो स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनन का, मैं एवरी 6 मंथ्स में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन रीड करता हूँ थॉरली, और प्रैक्टिकली मैं उसको डेली डेली यूज करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास कोई केस आया, मैं केस टेकिंग किया, उसको मियाजमेटिक अप्रोच किया, फिर उसके बाद में ये देखता हूँ कि क्या हमारी मटीरिया मेडिका या क्या हमारी जो मेडिसिन हैं वो क्या ऑर्गेनन से रिलेट कर रही है, क्या हम एडमिनिस्ट्रेशन उसका सही से कर रहे हैं। ठीक है, तो मैम मेरे पास 2 है, एक क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की बुक्स, और फिर जो हम अपने कॉम्पिटिशन्स और हम एग्जाम में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज है एसके दुबे। तो ये लाल इसलिए दिख रही है क्योंकि मुझे बोला गया था कि ये लाल किताब है। लाल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैंने अपने स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, एंड हौश पौश आप देख सकते हो कितनी है। एसके दुबे है, उसके बाद में बोरिक, ये वेरी वेरी कॉमन बुक्स हैं। एलन स्कीनोट, आप एलन स्कीनोट भी आप देख सकते हो। ये मेरे पास ओल्ड वर्जन है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि जो अभी की रीसेंट एलन कीनोट आई है, इट इज वेरी कंसाइज और अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर उसके बाद में एक बुक आती है ईबी नैश, लीडर्स इन होम्योपैथिक थेरापेटिक्स। ठीक है, इसमें आप, इसको मैं इसलिए पढ़ता हूं कि लास्ट में आप ये देख सकते हो ग्रुपिंग ऑफ रेमेडीज।
जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि ट्रायोस ऑफ रेमेडीज, ट्रायोस ऑफ डिलीरियम, ट्रायोस ऑफ एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, तो हमारी ईबी नैश में इट इज इट इज गिवन। तो हम ये देखते हैं कि इसके स्टार्टिंग में हमारे ग्रुपिंग्स में इसमें दिया है डाइजेशन रेमेडी, नक्स, पल्सा, ब्रायनिया, एमोनियम क्रूड, एंटीमोनियम क्रूड। सो ये है, हम इससे हम पढ़ सकते हैं। तो ईबी नैश हमारी प्रैक्टिस बोथ हमारे लर्निंग्स में और क्लिनिकल प्रैक्टिस में अच्छी होगी। तो मेरे पास और किताबें हैं, जैसे एक है हमारी सोल ऑफ रेमेडीज। सोल ऑफ रेमेडी, मैं इस बुक से इतना प्यार करता हूँ ना, मैं अगर ये बेड साइड बुक है मेरी, मतलब आप इसको कोई भी बुक पढ़ो, आपको थीम समझना है, आपको उसके अंडरस्टैंडिंग समझनी है, आप इसको कोई भी मेडिसिन आप खोल लो, आपको इसमें थीम पता चल जाएगी। जैसे हम लोग ये देखते हैं ब्रायोनिया, ब्रायोनिया का मेन थीम क्या है, इसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये बुक है जो मैं अराउंड थर्ड ईयर से पढ़ रहा हूँ, और इट्स बीन लाइक अराउंड 9 और 8 years, है ना। तो ये चीज है। फिर मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट बुक है, ये जो हम लोग सब देखते हैं, दिस इज द बुक एम एल टाइलर, ड्रग पिक्चर। इसमें कहानियां ऐसी हैं, इसमें चीजें ऐसी दी हुई हैं, इसको आप एज अ नॉवल की तरह पढ़ सकते हो। तो ये हमारी बोथ लर्निंग्स और बोथ क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में आ सकती है। इसके साइड वाइज मेरे पास कुछ ऐसी किताबें हैं जो हम लोग फर्स्ट ईयर्स में भी पढ़ते हैं और जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही हेल्प होती है। एक बुक है दिस, डिजीजेस एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स। ये यूपी में बहुत ज्यादा देखने को मिली है ये वाली किताबें। बहुत से ऐसे जो होम्योपैथ्स हैं वो बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट दे हैवंट बीन इन, मतलब एमडी उन्होंने नहीं परस्यू किया है, बट इससे, इस बुक से ये एक प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसमें दी हुई है डायग्नोसिस बेस्ड होम्योपैथिक रेमेडीज। तो ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारी बहुत हेल्प करती है। इसके साथ में मैं इसको मतलब डेली नहीं पढ़ता हूँ, बट ये कि मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू मतलब जैसे कंपेयर विद द मेडिसिन। ये फिर एक रेमेडी आती है, फाइंड योर Find your रेमेडी, remedy. फाइंड योर रेमेडीज बाय एच.एस. तनेजा। इसमें इसमें हर चीज दी है, वन लाइनर्स दिया हुआ है। ये वाली बुक मैं यूजुअली मतलब रेगुलर नहीं पढ़ता हूँ, बट मुझे लगता है कि जब मैं कुछ डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आता है, या फिर कुछ ऐसा लगता है कि ये मेडिसिन क्यों दी गई है, या ये जरूरी है क्या कि इसमें चलेगी, तो ये है। फिर जो बेसिक्स है, जो स्टूडेंट्स हम लोग थेरापेटिक्स पढ़ते हैं ना, हम लोग का एक थेरापेटिक्स का एग्जाम्स होते हैं, सर्जरी का, ऑब्स एंड गायनी का। मेरे पास एक बुक है, सर्जरी एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बाय श्रीकांत कुलकर्णी। इसमें भी हम ये देख सकते हैं कि जैसे इसमें इन्होंने बेल्स पैल्सी की एक मतलब डिजीज बताई है। ये बच्चों में या फिर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी हम ये देख सकते हैं। तो इसमें डिस्कशन थ्रू बताया गया है कि हम ये बुक सर्जरी बिफोर, पोस्ट या प्री ऑपरेशन में हम देख सकते हैं। ठीक है। लास्ट एक बुक है मेरे पास, गाइनियोप्स की। गाइनियोप्स की ये मेरे हिसाब से आई वाज वेरी अफ्रेड ऑफ टेकिंग केसेस ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड गाइनियोप्स केसेस। मैं बहुत डर रहा था, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड मुझे एनलाइटन किया डॉक्टर यामिनी मैम ने, एंड उन्होंने बोला कुछ नहीं है, तुम ट्राई करो, ट्राई योर बेस्ट। और मेरे पास ये बुक मेरे ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई थी, बट मैंने इसको कभी उतना, सिर्फ एग्जाम पर्पस में पढ़ा। फिर बाद में मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आया, अच्छा ये इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरी क्लिनिकल प्रैक्टिशनर। सो दीज आर सम बुक, एंड यही सारी चीजें हैं। आपको खिचड़ी नहीं बनाना है, मतलब ये जितने भी मैंने बुक्स बताई, इसके अलावा भी बहुत सी है मेडिसिन, मतलब मटीरियल मेडिका बुक्स जो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। बट द थिंग इज, every stalwarts, every pioneers, every doctor has
their own perspective of knowing the medicines, है ना? जैसे हम टेरेक्सिकम पढ़े हैं, टेरेक्सिकम हम यूजुअली किस में देते हैं? मैम जियोग्राफिकल टंग में। बट क्या आपको लगता है कि टैरेक्सिकम इज द सिंगल मतलब सिंगल मेडिसिन जो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? नहीं। बट हम यहां से कंपैरिजन करते हैं, जैसे नैट्रम्यूर का। नैट्रम्यूर भी जियोग्राफिकल टंग है, बट उसमें एसेंस क्या है ये हमें समझना है। जैसे हम लोग मेरे पास एक केस था मैम, अगर टाइम हो तो मैं बताऊं तो हमारे पास एक पेशेंट आया सनस्ट्रोक का। हम सब पढ़ रहे हैं सनस्ट्रोक की मेडिसिन है, बेला है, हायोसाइनस है, ग्लोनाइन है, ये सारी चीजें। बट एक मेडिसिन है बोरिक में, उस्निया बर्बराटा। कभी आपने पढ़ा? बोरिक में दी हुई है, उसमें सिंगल दिया हुआ है सनस्ट्रोक, हेडेक। ये है तो हमें कंपैरेटिवली पढ़ना है। एक बुक से पढ़ा, हमें लगता है कि ये बुक सफिशिएंट है, तो आप दूसरे में करो। मैं केस टेकिंग के बाद में मैं कम से कम 4-5 बुक्स को गो थ्रू करता हूँ, जिसमें मुझे ऐसा लगे कि हाँ नहीं, मैं सही। सो ये सारी चीजें हैं मैम जो हमें खिचड़ी ना समझ करके कंपैरेटिवली पढ़िए, और ये सारी बुक्स है मैम मेरे पास। सो ओवर टू यू मैम। दैट्स ट्रू। जो आपने बुक्स बताई वो बेसिक्स और अच्छी बुक्स है, मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर अंकुर के लिए है। ऑर्गेनल पढ़ना, अप्लाई करना इतना आसान क्यों नहीं है? मतलब ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और इज देयर एनी अदर सब्जेक्ट्स व्हिच कैन एक्ट एज अ प्री रिक्विजिट टू स्टडी ऑर्गेनल एंड टू अप्लाई ऑर्गेनल? ओवर टू यू डॉक्टर। मैम ऑर्गेनॉन स्टडी करना मुश्किल इस वजह से भी है क्योंकि यूजी और पीजी में भी मैम, अगर मैं एजुकेशन वाइज बात करूं तो उतना प्रिसाइज तरीके से बताने वाले कोई नहीं है। अगर हम टीचर्स की बात करें तो वो करिकुलम रिलेटेड स्पेसिफिक चीजें बताएंगे। आउट ऑफ द करिकुलम क्लिनिकली आप कैसे अप्लाई करोगे ये बताने वाले टीचर्स बहुत कम होते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, मैंने देखा है। दूसरी चीज मैम ये है कि जब हम और सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि ऑर्गेनॉन के साथ साइकोलॉजी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप केस टेकिंग के अफोरिज्म पढ़ते हैं, वहां पर भी डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर ये आपके अंदर होनी चाहिए। कि नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर क्या है, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं वो वहां पर। अब आप बोलेंगे कि साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्यों? और मैम अगर आप भी कोई क्वेश्चन भी ऊपर कर रहे थे कि अब रिसेंटली साइकोलॉजी इज इंक्लूडेड इन दिस ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन ओनली, वो अभी हमारे यहाँ सेमिनार भी हुआ था जहां आयुष मिनिस्ट्री का, तो उसमें ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक साइकोलॉजी पूरा लिख के एक ही सब्जेक्ट माना जा रहा है। तो साइकोलॉजी में मैम ऐसे होता है कि मान लीजिए हम केस देख रहे हैं और हम उसको परसीव कर रहे हैं। अब पेशेंट जो हमें मेंटल सिम्टम्स बता रहा है उसमें एक साइफरिंग की जरूरत होती है। कि मान लीजिए आपको एक सर्कमस्टेंस में एक इमोशन प्रोड्यूस होता है। आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, आप इमोशंस का चैप्टर पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि ऐसा होगा तो ये इमोशन प्रोमिनेंट निकल के आता है, ऐसा सर्कमस्टेंस होगा तो ये निकल के आता है। पर अगर आप केस ले रहे हो और आपने उसका वो इमोशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो और आप सर्कमस्टेंस नहीं देख रहे, अगर सर्कमस्टेंस है, इमोशन आ रहा है, तो फिर कॉमन है, फिर उसमें आप उतना पिक्यूलैरिटी नहीं दोगे, उसने इतना क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। लेकिन सर्कमस्टेंस मिसिंग है पर इमोशन बहुत भर भर के आ रहा है वही वाला, देन इट बिकम्स पेक्यूलियर। पर अगर आपको साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी तो आप ये जानोगे कैसे कि नॉर्मल क्या है? जैसे हम एलाइड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ना कि एलाइड सब्जेक्ट से हमें ये पता चलता है कि कॉमन क्या है और हमें अनकॉमन चाहिए। वैसे ही अगर हम माइंड की बात करें या मेंटल्स की बात करें तो साइकोलॉजी की, ह्यूमन नेचर की जब आप एक अच्छी पिक्चर बनाएंगे तब आपको नॉर्मल पता चलेगा और फिर आपको अनकॉमन पहचानने में भी मदद होगी। तो मैम मुझे लगता है साइकोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और साथ में मैम मुझे लगता है कि कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो आप मतलब आउट ऑफ होम्योपैथी भी पढ़नी चाहिए। जैसे एलेक्सिस कैरल की मैन द अननोन। ऐसे मैम कई किताबें हैं जिसमें आपको पता चलता है कि डायग्नोसिस ऑफ मैन करके है मैम एक किताब केनेथ वॉकर की। तो आपको पता चलता है कि और भी ऐसे फिजियोलॉजिस्ट हैं, और भी ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो होलिस्टिक वे को सपोर्ट कर रहे हैं बीइंग एलोपैथ। वो बोल रहे हैं कि हमारी ये फील्ड रही है, हमने ये पढ़ा है, हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी पूरी जिंदगी, पर एंड में रियलाइज हुआ कि होलिस्टिक अप्रोच मिसिंग था। तो फिर ये
कोरिलेट करके आप पढ़ने में मदद मिलती है। और मैम इसी इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो कोरिलेशन का पर्पस है, मुझे लगता है कि आपको मॉडर्न मेडिसिन की कुछ ऑथर्स की किताबें पढ़नी चाहिए। जैसे कि मैम अजरा रजा करके एक ऑथर है, उनकी मैं किताब पढ़ा था द फर्स्ट सेल करके। वो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनके हस्बैंड भी ऑन्कोलॉजिस्ट थे जॉन हॉपकिंस में, एंड ही ऑल्सो डाइड ऑफ कैंसर। तो उन्होंने ये बात लिखी, वो पाकिस्तानी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो उन्होंने ये बात लिखी कि हम बोलते हैं कि कैंसर में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम एलोपैथ क्लेम करते हैं, पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो अभी हम उतना ही पीछे हैं जितना हम पहले थे। हमें पता है कि ये जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये हार्मफुल है, हमें पता है ये उसको इस तरीके से अफेक्ट करेगा, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड उसी पैराग्राफ में वो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज कहते हैं कि अब हमें जरूरत है कि हम ईच इंडिविजुअल को इंडिविजुअलाइज करके उसके कैंसर को देखें, रादर देन एक ग्रुप कैंसर की ये कैंसर ऐसा होता है। तो अब वो इंडिविजुअलाइजेशन को वो समझ रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो अगर आप अभी एज अ होम्योपैथ ऑर्गेनोन को पढ़ के, ये कोरियली सब्जेक्ट्स को पढ़ के इंडिविजुअलाइजेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो बाकी लोग जो आपके काइंड ऑफ कंपेटिटर बोल सकते हैं मैम हम, पर वो एक नेगेटिव सेंस हो जाएगा, पर वो भी अब वो इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ भाई इंडिविजुअलाइजेशन नाम की कोई चीज है, होलिस्टिक अप्रोच नाम की कोई चीज है, एंड वो आपका फोर्टे है। तो आप अपना फोर्टे स्ट्रॉन्ग करिए, इससे पहले कोई और उस पे अपना एक तरीके से पकड़ बना ले। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सेशन के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन मेरा सेम रहेगा, आप दोनों को बारी बारी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं। सो मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज लैकिंग इन होम्योपैथी? ओवर टू यू डॉक्टर आशुतोष, फर्स्ट यू गो फर्स्ट। मैम सबसे पहली चीज होती है कि हम लोगों को बेसिक्स, मतलब मैंने पहले भी एक ये आंसर दिया कि बेसिक्स। अब बेसिक्स क्या है? अब हम कोई घर बनाएंगे बिना नींव का तो कैसा होगा? वी नो दैट होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन 4 सब्जेक्ट्स: ऑर्गेनल, मटीरिया, रिपर्टरी, और जो भी है इसमें हम ये समझते हैं कि इससे रिलेशन क्या है एक दूसरे का। अगर हम ऑर्गेनल नहीं पढ़ेंगे, हमें ये नहीं पतेगा हाउ टू प्रैक्टिस होम्योपैथी। एम आई करेक्ट डॉक्टर अंकुल? और Yes. अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और हम ये बोलेंगे कि हाँ वी आर द डॉक्टर्स एंड वी आर प्रिस्क्राइबिंग दिस रेमेडीज, तो हमें पढ़ना पड़ेगा मटीरिया मेडिका। एंड वी ऑल नो मटीरिया मेडिका इतनी वास्ट है, इट्स अ फाइंडिंग अ पर्ल इन द ओशियन। सो द थिंग इज कि हम लोगों को बेसिक्स ही नहीं पता है तो हम लोग समझेंगे क्या? ठीक, पहली चीज ये लैक करता है कि हम लोगों को बताने वाला कोई नहीं है। द प्रैक्टिशनर्स जो कि हम लोग को पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी हम लोग को बता रहे हैं, वो अगर हमें ऑथेंटिकली चीजें बता रहे हैं तो बच्चा परसीव नहीं कर रहा है कि अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है। फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है, उसको दिखता है एमबीबीएस। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी अदर मोड ऑफ पैथी, बट मैं बोल रहा हूँ कि उसका बेसिक ये है कि बीएमएस करना है, बीएमएस करना है, ठीक है, डेंटल जाना है, तो उसको पहले होम्योपैथी के बारे में ही नहीं पता। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर हम इन डेप्थ मेडिसिन में जाते हैं तो हम लोग को यही नहीं पता है कि मेडिसिन मेडिसिन ही है कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करना। जैसे अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, हम ऑर्गेनल में जाते हैं, मटीरिया मेडिका की कोई भी बुक्स है या फिर कोई भी मेडिसिन है। जैसे अगर हम बात करते हैं, मैम वंस आई हैड एन इंटरेक्शन विद द पेशेंट, और आपने उसमें एक सेंटेंस बोला था कि इसमें ज्यादा रिसर्चेस नहीं है। जैसे हम लोग बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं हम लिए और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, बट हाँ, क्या इसमें जो लैकिंग है वो क्या हम प्रूव कर सकते हैं? तो जो हम या तो हम ड्रग प्रूविंग कर सकते हैं, ड्रग प्रूविंग करेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि अच्छा ये मेडिसिन है। अच्छा, जैसे कैलकेरिया सिलिकाटा है, हमने थोड़ा पढ़ा, बट क्या कैलकेरिया ग्रुप और साइलेशिया ग्रुप को मिक्स करके कुछ मेडिसिन बन सकती है? तो हमें पहले बेसिक समझ करके फिर हमें और जगह जाना है और चीजें समझनी है। तो ये लैक करता है कि हमें बताने वाला कोई है नहीं, और जो बता रहा है तो बच्चा परसीव नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके माइंड में
कुछ और चल रहा होता है। तो वही है, कोरिलेशन है वाइस वर्सा, कि जो पढ़ा रहा है उसको समझो वो क्यों पढ़ा रहा है, और जो पढ़ रहा है वो ये समझे कि हम पढ़ क्यों रहे, हम एकोनाइट को एकोनाइटली क्यों पढ़ रहे हैं, हम एकोनाइट को क्यों नहीं हम समझ सकते हैं कि वो रेस्टलेस के अलावा और कुछ भी है। तो दीज ऑल थिंग्स जो कि लैक कर रहा है, बताने वाला कोई होना चाहिए। और आज के टाइम में मैं 30 साल पुराने जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे मैं बात करता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि बेटा हम लोगों को इतना अप्रोचेस नहीं मिला, हम लोगों को उतना बताने का मौका नहीं मिला, वो पॉलीक्रिस रेमेडीज में ही है। बट एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी है, तो एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी में हमें सारी मेडिसिन को, सारी चीजों को हम क्यों देख रहे हैं, जैसे केस टेकिंग पढ़ रहे हैं, जैसे डॉक्टर जीतेश सर के केसेस है, डॉक्टर शंकरन सर के केसेस है, डॉक्टर फारूक मास्टर सर के, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कि फारूक मास्टर सर के वीडियोस में देख करके मैं खुद सोचता हूँ अच्छा ये भी कोई रेमेडी है, मटीरियल मेडिका होने के बाद भी। तो वो चीज जब प्रैक्टिशनर्स बताएगा वो चीज होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में बोला था, बिलीफ, डिसिप्लिन। जैसे अभी आई एम, निहारिका मैम ने शायद कमेंट भी किया है, डेडिकेशन, यस डेडिकेशन इज आल्सो लैकिंग। ओवर टू यू मैम, these things I'm telling. मैम आप म्यूट हैं शायद। Same question to you, Dr. Ankur. What is lacking in homeopathy? मैम मैं दो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ इसमें, और वही मेरे दिमाग में फिट हो चुके हैं। जब हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं और फर्स्ट एडिशन का प्रीफेस पढ़ते हैं, तो उसमें सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में डॉक्टर हनीमैन आपको खुद ही बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है, वो बोलते हैं अगर लव ऑफ ईज पसंद है, ऑब्स्टिनेसी पसंद है और इंडोलेंस पसंद है, तो ये आपकी फील्ड नहीं है। और क्या पसंद होना चाहिए कि आपकी फील्ड होनी चाहिए? जीलस नेचर एंड अनप्रेजुडाइज्ड नेचर। वो उस पैराग्राफ में साफ बोलते हैं कि ये चीजें हैं तो आप नहीं हैं, वहां पर आपको नहीं चाहिए, वो आप होम्योपैथी मत करिए। ऑब्स्टिनेट माइंड के हैं, इंडोलेंस है, लव ऑफ ईज पसंद है तो नहीं। जीलस हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर आशुतोष ने बोला, बिलीफ रखते हैं, डेडिकेशन रखते हैं, तो होम्योपैथी आपके लिए बनी, और फिर आपको होम्योपैथी में कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज मैम जो मैं बोलता हूं कि डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स का आप पहला चैप्टर पढ़िए, तो वो बोलते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि व्हाट होम्योपैथी हैज टू ऑफर टू यू, तो वो बोलते हैं अपने लास्ट लाइन में कि अगर आपको ये जानना है कि व्हाट होम्योपैथी हैज टू ऑफर टू यू, देन यू टेल मी यंग मैन व्हाट यू हैव टू ऑफर टू होम्योपैथी। एंड मैम ये दो जो चीजें हैं, अगर आप इसको समझ लेंगे और डेडिकेशन से पढ़ना चालू कर देंगे, तो फिर होम्योपैथी कहीं पीछे नहीं है मैम, बहुत आगे है फिर तो। मेरा आज का लास्ट सवाल आप दोनों से, पहले मैं सवाल करूंगी डॉक्टर आशुतोष से और फिर उसे डॉक्टर अंकुर का जवाब देंगे। आज के सेशन के बाद आप कोई मैसेज जो यंग होम्योपैथ्स, फेलोज, न्यू प्रैक्टिशनर्स को देना चाहें, डॉक्टर आशुतोष। मैम बेसिकली देखिए मैम, थोड़ा सा एक इंसिडेंट ऐड करूंगा। आई एम नॉट प्रेजेंटिंग माई सेल्फ, बट मोस्ट ऑफ यू ऑल नो दैट क्या चीज है, व्हाट कनेक्टेड विद मी एंड व्हाट कनेक्टेड विद दी होम्योपैथी, क्यों मैं होम्योपैथी से इतना प्यार करता हूँ। जैसे एक टाइम ऐसा था, मतलब आज से बहुत साल पहले, वन डॉक्टर टोल्ड मी दैट यू वोंट सर्वाइव इन 12 years, है ना। सो माय फैमिली डिसाइडेड दैट कि हाउ कुड दिस पॉसिबल कि ऐसा कोई तो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा द डिजीज कुड स्टॉप, बट होम्योपैथी इज द ओनली थिंग। आई रिस्पेक्ट अ लॉट, बहुत से लोग आप लोग जानते हैं, डॉक्टर एस एन सिंह सर, मैं उनका बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मानता हूं। उन्होंने सीधा बोला कि मैं डिजीज को रोक नहीं सकता, मैं डिजीज को ठीक नहीं कर सकता, बट मैं उसकी प्रोसेस को कम कर सकता। वहां से मेरा बिलीफ हुआ कि जब मैं ठीक हो सकता हूं, जब एक ऐसा व्यक्ति जिसको इनक्योरेबल डिजीजेस है वो ठीक हो सकता है, तो व्हाई कुडंट आई ट्रीट समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम सच अ हैजार्ड डिजीज।
और सच अ कॉमन डिजीज, एक्यूट और क्रॉनिक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर जैसे कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो मेरा यही एक मैसेज है सभी बच्चों के लिए या सभी होम्योपैथ्स के लिए। और आप लोग पहले निराश नहीं हुई, एमडी इज नॉट द बिग कप ऑफ मतलब कप ऑफ अ टी। आप नहीं भी करेंगे तो ये आपके लिए है, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यही है कि आप डेडिकेट रहिए, आप सोचिए कि होम्योपैथी ऐसा नहीं है कि चोट लगा आप उसको ठीक कर। मेरे पास एक केस है 3rd डिग्री बर्न का। मैम आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि वो मेडिसिन एग्जिस्ट करती है होम्योपैथी में। पैराफेराइनम। पैराफेराइनम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें 3rd डिग्री बर्न का डिस्क्रिप्शन दिया है विद हाउ यू कैन अप्लाई द मेडिसिन। तो आप डेडिकेट रहो, आप चीजें समझो, समझ के करो। होम्योपैथी क्या बोलते हैं, एक मैजिक नहीं बोलूंगा बट एक एसेंस है। आप उसको करने जब लगोगे ना, आपको हर चीज क्लियर आ जाएगी। आप कोई भी मेडिसिन को लेकर के ना, आप उसको कंपेयर कर सकते हो, आप कोई भी मेडिसिन को लेकर के एक कर सकते हो, बट आपको उसमें लगना पड़े, जुझारू होना पड़े। सो दिस इज द थिंग मैम। पहली चीज मैं बोलूंगा कि रीड लर्न अप्लाई, फर्स्ट थिंग आपको करना ही पड़ेगा। चाहे आप ऑर्गेनल करिए, रिपर्टरी करिए, चाहे आप सर्जरी करिए, या फिर आप स्पेशलाइजेशन इन मटीरियल मेडिकल करिए, बट आपको रीड लर्न एंड अप्लाई करना पड़ेगा और बी हैप्पी। बस ये ओवर टू यू मैम। Same question to Dr. Ankur. The message to young minds. Hello. मैम मेरे पास तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, एक ही मैसेज है, सब्र रखो, सब्र रखो, सब चीजें होंगी। मैम क्योंकि मैं पर्सनली बताता हूँ कि अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आप आज मेरे को इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, यंग होम्योपैथ्स हैं जो शायद मेरे जितनी मेहनत करते होंगे, मेरे जितना ही पढ़ते होंगे, उनको लगेगा कि हम क्यों नहीं है यहाँ पर। और मैं कल तक मैं भी यही सोचता था। एंड मैं बहुत फ्रैंकली मैम मैं ये बताता हूँ ये बात कि जेलिसी एक रोल प्ले करती है। बहुत सारे इमोशंस आपको ओवर पावर करने को आएंगे और आप उससे लड़ोगे, आपको लड़ना पड़ेगा क्योंकि, पर सब्र रखो, सब्र रखो, अपनी प्रोसेस पे बिलीव करो। आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो उसको रिपीट करते रहो, करते रहो, करते रहो। इवेंचुअली अगर आपका जो प्रोसेस है वो ट्रू है आपकी साइंस को लेके, आपका इंटेंशन ट्रू है आपकी साइंस को लेके, तो इवेंचुअली थिंग्स विल वर्क आउट। और इवेंचुअली जो आप रिकग्निशन चाहते हो वो आपको मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। डॉक्टर गौरांग सर का एक मैम पॉडकास्ट चलता था ऑर्गेनो मेडिसिन पे, उसमें एक पर्टिकुलर पॉडकास्ट में उन्होंने एक बात बोली तो मुझे बहुत पसंद आई और फिर मुझे भी रियलाइज हुआ था कि ये मैं क्या कर रहा हूं। उन्होंने बोला रैट रेस में मत फंसो, कि जो इंस्टाग्राम में ये रैट रेस चल गई है ना, कि अब सब लोग कंटेंट डालना चाहते हैं क्योंकि कंटेंट आ नहीं रहा है अंदर से, पर कंटेंट बनाया जा रहा है क्योंकि डालना है। कंटेंट आपको आना चाहिए, आप पढ़ते हुए कुछ रियलाइज करना चाहिए आपको कि ये बताना है मुझे लोगों को कि ये तो कोई नहीं पढ़ता होगा। कंटेंट आएगा, आप कंटेंट लाइए मत, क्योंकि वो फोर्सफुल होता है, फिर वो दिखता है कि आप फोर्सफुली कर रहे हो, नेचुरल नहीं लगता। तो सब्र रखिए, प्रोसेस करिए, अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करिए और रिपीट करते रहिए इस प्रोसेस को। इवेंचुअली आप भी डॉक्टर एनम के साथ बैठेंगे और हम जैसे खुश है आज आप भी खुश होंगे। Yes, yes, absolutely. आप दोनों को आज सुबह से मैं ही मिली हूँ। That's okay. कोई बात नहीं। But the aim of today's सेशन वॉज, क्योंकि हम अब तक 97 एपिसोड्स में बीच में एक और लिटिल चैम्प किया था मैंने, डॉक्टर मयूर, डॉक्टर माय मोस्ट फेवरेट डॉक्टर अभिनव के साथ हमने किया था, शायद वो 50 एपिसोड के अंदर था। इसका रीजन ही यही है कि सब लोग इतना चमकते दमकते एकदम अच्छे वेल सेटल्ड होम्योपैथ से सीखते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि बीच में एक रगड़ने वाली स्टेज भी आती है ना। तो दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है। तो आज मैं चाहती थी कि वो जो खाक में मिल रहे हैं ना बच्चे अभी इस टाइम, है ना, जो 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 मंथन हो रहा है ना समुंदर का, जो विष निकलने वाला टाइम है ना, तो आज मैं चाहती थी कि कुछ ऐसे होम्योपैथ एमडी स्कॉलर्स आए जो इस टाइम विष पी रहे हैं विगरसली,
भी देख रहे हैं, रिसर्च भी देख रहे हैं, प्रैक्टिस भी देख रहे हैं, टीचिंग भी कर रहे हैं साथ में, है ना। कभी कभी आप लोगों को भी डाउट आता होगा अपने करियर को लेके, मैं आगे क्या करूंगा। कभी कभी अपसेट भी होते होंगे, कभी कभी ओवरवेल्ड होते होंगे, कभी कभी दूसरों को देख के खुश होते होंगे, कभी कभी उदास हो जाते होंगे कि हमारा क्या होगा। सो ऐसा भी होता है। So the purpose of today's session was, it is absolutely normal, it is absolutely okay to have struggle days. आप लोग ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप ना इतना अर्न कर रहे हैं कि आप किसी को सपोर्ट कर सके, और आप फैमिली से पैसे मांग नहीं सकते। आप समझ रहे हैं ना, जिम्मेदारी आप दोनों के कंधे पे इतनी ज्यादा है, और आंखों में बहुत चमक और दिल में बहुत सारा जुनून, यही चाहिए। I am setting two of you today as an example, as a landmark on episode 97, कि कोई बात नहीं है, जो भी आपके आइडियल हैं, स्टालवर्ड्स हैं, वो आप पहुंचेंगे, पर उसके लिए आपको डॉक्टर अंकुर और डॉक्टर आशुतोष के स्टेज से ही गुजरना है। देयर इज नो शॉर्टकट। You have to be first Dr. Ankur and Dr. Ashutosh before you become any other living legend or stalwart. Thank you so much. I थैंक यू raise मैम। my heartfelt gratitude to both of you for sparing your valuable Sunday. एक ही दिन मिलता है बेचारे एमडी के बच्चों को, उसमें भी you are sitting here and talking with us. Thank you so much. And I would like to let you know, Dr. Ankur, I am a very short span वाला fan of yours. 2 दिन पहले ही आपकी आईडी मुझे मेरी किसी इंटर्न ने दिखाई थी कि मैम आप डॉक्टर अंकुर को जानते हैं क्या, और मैंने उसके फोन से आई सॉ फ्यू ऑफ योर रील्स एंड आई इमीडिएटली बिकेम योर फैन। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। एक थैंक ईमेल पर आने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशुतोष। अगेंस्ट ऑल योर ऑड्स आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू बिकम एग्जाम्पल एंड लिविंग लेजेंड वेरी सून। थैंक थैंक यू यू। मैम। Thank you so बाय। much. Thank you, ma'am. Good day, ma'am. गुड डे। So I hope you all have enjoyed the session, and it was absolutely amazing to have you all. And if there are any questions, you can DM or you can email me at healshomeopathy@gmail.com. We'll be back next Sunday with another episode, 98th episode of Instagram Live Guest Talk with Homeopathy Heals with another guest. Till then, stay fit, stay healthy, Homeopathy Heals.